नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की कर्मी सभा आयोजित। श्रम मंत्री ने तृणमूल कर्मियों को सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। विभिन्न जिलों के साथ साथ रविवार को अलीपुरद्वार जिले में भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा आधारित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अलीपुरद्वार के रविंद्र भवन में आयोजित इस कर्मी सभा में अलीपुरद्वार विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत इलाके व अलीपुरद्वार नगरपालिका इलाके के प्रत्येक बूथ से तृणमूल कांग्रेस कर्मी उपस्थित हुए थे। कर्मी सभा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की विभिन्न तैयारी व भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक, पर्यटन मंत्री गौतम देव, अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, जिला परिषद के सभाधिपति शीलादास सरकार, अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती समेत पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मलय घटक ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचकर सटीक तरीके से सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को केंद्र की योजना बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि सुबज साथी राज्य सरकार की योजना है, जबकि भाजपा वाले इसे केंद्र सरकार की योजना बताकर लोगों में प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कर्मी से बूथ स्तर पर काम करने का आह्वान किया। प्रचार के विभिन्न माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की नसीहत दी। कार्यक्रम में फालाकाटा कालचिनी ब्लॉक से काफी संख्या में लोग भाजपा व सीपीएम छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल भी हुए। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটা জেলায় কর্মী সম্মেলন শুরু হয়েছে বুথ ভিত্তিক এবং সেটা বিধানসভা কেন্দ্রিক। আজকে শুরু হলো আলিপুরদুয়ার জেলায় এবং সেটা আলিপুরদুয়ার 12 আলিপুরদুয়ার বিধানসভা ক্ষেত্রে আজকে বুথের কর্মী সম্মেলন হলো। মোট 14টি অঞ্চল, একটি নোটিফাইড এলাকা এবং 20টি পুরসভার ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আজকে একটা ব্যাপক কর্মী সম্মেলন হয়েছে। খুব ডিসিপ্লিনড হয়েছে। 11টা থেকে প্রায় 3টে সাড়ে 3টে অবধি এই অনুষ্ঠান হলো। মলয় ঘটক এসছেন, আমাদের দলের বসিয়ার নেতা এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, জেলা সভাপতি ছিলেন এবং যিনি এই বিধানসভার সদস্য ডক্টর সৌরভ চক্রবর্তী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি 3 মাস ধরে আলিপুরদুয়ারে বিশেষ পর্যবেক্ষণে আছেন, বুথ লেভেল সংগঠনকে শক্তিশালী করছেন এবং আমাদের দলের সমস্ত জনপ্রতিনিধি, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম সভা থেকে শুরু করে জেলার সমস্ত লিডারশিপ আজকে একসাথে এখানে আমাদের সাংগঠনিক বিষয় পর্যালোচনা হয়েছে এবং থ্রেডওয়্যার ডিসকাশন হয়েছে। বুথে বুথে যাওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলার ক্ষেত্রে, সেই বার্তা নিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা পৌঁছবে এবং প্রতিদিন 5টা করে বুথে সেই মানুষের কাছে যাওয়ার সেই পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা ঘোষণাও করেছে। সাথে সাথে আজকে প্রচুর জয়েনিং হলো। ফালাকাটা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, ধরিনাম 1, 2, কাদম্বনি বাগান এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে, ফালাকাটা 1, 2 প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে বলছি ফালাকাটা বিধানসভায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজেপি সিপিএম থেকে যারা ছিল, যারা মেন অর্গানাইজার ছিল, প্রচুর মানুষ, প্রায় মানুষ আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শে। আজকে আমরা বিশ্ব পর্যটক দিবস হিসাবে প্রত্যেকটা লজ মালিক, হোমস্টে মালিক, জিপসি ওনার্স, জিপসি ড্রাইভার মিলে চিলাপাতা জঙ্গল ক্যাম্পে একটা ছোট্ট আদিবাসী নৃত্য দিয়ে প্রোগ্রাম করছি। তাতে চিলাপাতার কিছু হোমস্টেতে, লজে যারা গেস্টরা ছিলেন তারা আজকে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তারা আদিবাসী নাচ, লোকাল কালচারের যে ব্যাপারটা আমাদের এখানে আছে সেটাকে দেখে ওনারা খুবই খুশি হয়েছেন। আর ব্যাপার হলো, চিলাপাতায় আগে 2-4টা যখন লজ ছিল তখন এইসব প্রোগ্রাম করা হতো না। এখন একটা বড় সংসার তৈরি হয়ে গেছে। হোমস্টে, লজ মিলিয়ে প্রায় 24খানা আজকে একটা রিসোর্ট হোমস্টে তৈরি হয়েছে। তাতে প্রচুর লোকের, এখন আমাদের এখানে লোকাল লোকেরও কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, তাতে প্রচুর পর্যটক আসছে। সেই মনে রেখে আজকে আমরা
বিশ্ব পর্যটক দিবসের একটা ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান চিলাপাতা জঙ্গল ক্যাম্পে করলাম। তাতে এলাকার কিছু লোকজন এসেছিল, পর্যটকরা এসেছিল, তারাও খুব খুশি হয়েছেন। তার সাথে এক নতুন ট্যুরিজম সংস্থার থেকে যুক্ত অভিকবাবু নিজের একটা সংস্থা লঞ্চ করেছিলেন, সেটাও আজকে এখানে আমরা সবাই মিলে ওনাকে ধন্যবাদ দিই। উনি কলকাতা থেকে এসে এখানে 999 বলে হলিডে মানে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলার্স একটা সংস্থা চালু করেছেন। তাতে আমরা খুশি যে এই এলাকায় প্রচুর ট্রাভেলস এজেন্ট এখন আসছেন, তারা চিলাপাতাকে প্রমোট করার চেষ্টা করছেন। এই নিয়ে আমাদের এখানকার হোমস্টে মালিক, লজ মালিকরা খুবই খুশি হচ্ছেন। এই হলো আজকে আমাদের প্রোগ্রাম। पश्चिम बंगाल में कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं 2 नवंबर से होगी शुरू, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में रविवार को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च स्तर शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के बीच हुई एक बैठक में कॉलेजों में 2 नवंबर से यूजी की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। कॉलेजों में अक्टूबर में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2 नवंबर से कक्षाएं शुरू होगी। डिजिटल बैठक में शामिल हुए एक प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में संभव नहीं होने की स्थिति में पीजी की कक्षाएं 1 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 60 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 82,170 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 24 घंटे में 82,170 नए मामले सामने आने से सोमवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60 लाख को पार कर गए, जबकि 74,893 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ देश में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 50.17 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 60,74,702 तक पहुंच चुकी है, जबकि 50,16,520 लोग अब तक इस बीमारी से उभर चुके हैं, जिससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 82.58% तक पहुंच चुका है तथा मृत्यु दर घटकर 1.57% पर रह गई है। बारिश कम होने के बाद भी उत्तर दिनाजपुर जिले के कई इलाकों में भयंकर जल जमाव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। आज सोमवार को बारिश रुकी हुई है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले के कई इलाकों में अभी भी जल जमा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मंगलवार से लेकर रविवार तक हुई भारी बारिश के कारण महानंदा, सुधानी, नागर, कोलिक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण रायगंज, करंदी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों में फसल भी नष्ट हो गई है। कई इलाकों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन के द्वारा राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रभावित लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द राहत सामग्रियां प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जाए। আমি সকাল থেকে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিছু খাওয়ার করতে পারি না, সে বন্যাতে আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তো আমি ভাসছি। সরকার তো কোনো মানে আমরাকে পরিষেবাই দিচ্ছে না। প্রধানকে আমরা ফোন করছি, প্রধান কোনো এলাও করছে না। আমাদের সব কিছুরই অসুবিধা হচ্ছে, একটা কোনো পলাথিনেরও আমাদের ব্যবস্থা করে দেয়নি। 2017 চেয়ে বেশি বন্যা, ভয়াবহ বন্যা। এখানে প্রায় 4-5টা গ্রাম নদীর তলায় এবং প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রায় 1000-এর প্লাস বাড়ি। ভোপলা, হাওয়াডাঙ্গি, গয়েশপুর, ধাউতা, দোলাখাড়ি, হাওয়াডাঙ্গি প্রতিটা বাড়িতে প্রায় জলের তলায়। এখন পর্যন্ত কোনো প্রশাসনের কোনো খোঁজ খবর নেই। এদিক দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, রসাখা যাওয়ার যোগাযোগ বন্ধ, এদিকে ভাটল যাওয়ার যোগাযোগ বন্ধ। একবারে চারিদিকে মানুষ জলে বন্দী হয়ে আছে। আমরা রিকোয়েস্ট করছি প্রশাসন এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দিক। অনেকেরই বাড়িতে খাওয়ার এখন পর্যন্ত রান্না হয়নি, সকাল হয়ে গেছে। প্রায় 10-11-12টা বেজে গেল, প্রত্যেকের বাড়িতেই জল। এখন পর্যন্ত কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা হয়নি। প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যে অতি শীঘ্রই যেন এই গ্রামগুলোকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই ভয়াবহ বন্যার ফলে তারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনেকের বাড়ি পড়ে গেছে, অনেকেরই বাড়ির তলায় জলের তলায় বাড়ি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 3.33 करोड़ केसेस आए सामने, 2.46 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.33 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,40,33,646 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े
www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन सरकार तमाम विरोध के बावजूद उत्तरी हिस्से और लंदन में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ही कह चुके हैं कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। बोरिस जॉनसन सरकार नॉर्दर्न ब्रिटेन और लंदन में फिर सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। द टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर तेज हो रही है और इससे वही हालात पैदा होने का खतरा है जो मई और जून में सामने आए थे। क्रांतिकारी भगत सिंह की आज है जयंती। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। देश भर में आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उनकी जयंती से एक दिन पहले उन्हें पीएम मोदी ने याद किया था। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जयंती के एक दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में भगत सिंह को याद करते हुए कहा था कि 28 सितंबर को हम वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं सभी देशवासियों के साथ वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी हुकूमत जिसका दुनिया पर शासन था, लेकिन एक 23 साल के युवक से ही हुकूमत भयभीत हो गई थी। अपनी टोली से बिछड़ गया हाथी शावक को देखने के लिए उमड़ी लोगों की जन सैलाब। मालबाजार प्रखंड की उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत के अधीन बंद मानाबाड़ी चाय बागान की 11 नंबर सेक्शन में हाथियों के एक दल से बिछड़ गए एक शावक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई। सूचना मिलने के बाद मालबाजार विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त शावक को बरामद कर ली है। उदलबाड़ी नेचर एंड एडवेंचर सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर नफसर अली ने इस विषय पर बताया कि कल रात भुट्टाबाड़ी जंगल से रात करीब 11 बजे भोजन की तलाश में हाथियों का एक झुंड इलाके में घुस गया। किसी कारणवश लगभग 2.5 महीने का शावक दल से बिछड़ गया। शावक के मिलने की खबर सुनते ही आसपास के लोग कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए उक्त शावक की फोटो लेने पहुंच गए। शावक को वन विभाग अपने साथ ले गई। बरामद शावक के विषय पर मालबाजार वन्य जीव विभाग के रेंजर विभूति रंजन दास का कहना था कि वह बहुत दुर्लभ शावक है और इसे गोरुमारा प्रकृति परिचित केंद्र भेजा जाएगा। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के राष्ट्रपति ने कृषि बिलों को दी मंजूरी, बने कानून। लेकिन किसानों का विरोध अब भी है जारी। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर जलाया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में बैठकर करेंगे धरना। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई इलाकों में खेती से जुड़े बिलों का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर जला दी। पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर ट्रैक्टर को ले जा रहे और फिर नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह नगर में धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि किसानों के हितों को देखते हुए अपने राज्य के कानून में संशोधन समेत सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में भी किसानों ने आज बंद का ऐलान किया है। बेंगलुरु में किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रपति ने किसान बिलों को मंजूरी दे दी है और वे अब कानून बन गए हैं। बंगाल में कोविड-19 के सामने आए 24 घंटे में 3185 नए मरीज, 60 लोगों की और हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस से 3185 और लोग संक्रमित पाए गए तथा 60 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोविड-19 के कुल मामले 2,47,425 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 4,781 पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 2,946 लोग 24 घंटे में संक्रमण से ठीक हुए हैं। अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर 87.67 पहुंच चुकी है। राज्य में 27,723 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि बीते 24 घंटे में राज्य में 43,618 नमूनों की जांच की गई है। एक ओवर में लगे 5 छक्के और राजस्थान रॉयल्स ने IPL में रच दिया इतिहास। पंजाब को 4 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का नवा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच सरजा के मैदान पर खेला गया। ये मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। राजस्थान की टीम ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर IPL के इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज को हासिल कर इतिहास रच दिया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पंजाब के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब की टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 106 रनों की तूफानी शतक और कप्तान KL राहुल 69 के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ और राहुल तेवतिया के अर्धशतकों के दम पर 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 226 रन बनाकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया। राजस्थान की टीम को जीत के लिए 3 ओवर में 50 रन से ज्यादा रन बनाने थे। संजू सैमसन आउट हो गए थे और राहुल तेवतिया स्ट्रगल कर रहे थे। इस बीच शेल्डन कॉट्रेल ने ओवर किया और सामने थे राहुल तेवतिया। राहुल ने पहली 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े। 5वीं गेंद खाली चली गई, लेकिन आखिरी गेंद पर फिर से छक्का जड़कर राहुल तेवतिया ने मैच का रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया। जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए बिहार के चर्चित पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे रविवार को जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने आज शाम CM नीतीश कुमार के आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाल ही में गुप्तेश्वर पांडे ने VRS ली थी। इसके बाद से ही उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके JDU में शामिल होकर तीर चलाने और प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकल तेज हो गई थी। बता दें कि JDU का चुनाव चिन्ह तीर है। -40 डिग्री में भी जवाब देने की तैयारी में भारत चीन सीमा के पास तैनात किए विध्वंसक टैंक। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। पिछले 5 महीनों से चीन के साथ संघर्ष में व्यस्त भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 4500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी सेना का मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार है। सीमा पार के दुश्मन से मुकाबले करने के लिए सेना भी सैनिकों के लिए नए आश्रय और पूर्ण निर्मित संरचनाओं का निर्माण करके भयंकर सर्दियों से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर रविवार को भारतीय सेना ने लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के
चुमार डेमचोक क्षेत्र में टैंक और पैदल सेना के वाहनों की एलएसी के पास तैनाती की। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने यह टैंक की तैनाती की है। सेना T-90, T-72 टैंकों और BMC-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन टैंकों को -40 डिग्री के तापमान में भी संचालित किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भीषण सर्दी पड़ती है। यहाँ रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम होता है और उच्च गति वाली ठंडी हवाएं चलती है। शादी के 10वें दिन गृहवधू का फंदे से लटकता मिला शव। हत्या की आशंका पति के साथ पिता के घर आई थी गृहवधू। रसोई घर में मिला शव, पति फरार। पश्चिम बंगाल के मालदा में शादी के 10वें दिन नवविवाहित गृहवधू का उसके पिता के घर फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मालदा जिले के ऋषिन्द्रपुर थाने के बरोई इलाके नंदीबाटी गांव में इस घटना में प्रकाश में आने के बाद लोग शोक में डूब गए। पुलिस ने आज सुबह गृहवधू का शव उसके पिता के घर से बरामद किया। मृतक की शिनाख्त मेहजाबी खातून के रूप में की गई है। कल रात वह अपने पति के साथ पिता के घर आई थी। आज सुबह से उसका पति इलाके से लापता है। मृतक के परिवार वालों की ओर से आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृत गृहवधू के पिता बदरुद्दीन शेख ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात उसकी बेटी व दामाद भोजन के बाद एक साथ सोने के लिए अपने कमरे में गए। आज सुबह उसकी छोटी बेटी ने देखा कि कमरा खाली है। बाद में रसोई घर में उसकी बेटी मेहजाबी खातून का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। वहीं मृतक गृहवधू के बड़े भाई जसीमुद्दीन शेख ने दामाद द्वारा उसकी बहन का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি শুনতে পেলাম সকালে আজকে যে ফাঁসি লাগিয়ে রান্নাঘরে ঝুলে আছে, গিয়ে দেখছি যে ফাঁসি লাগানো আছে, মানে দুটাই পা মাটিতে ঠেকে আছে, অথচ ফাঁসি ওড়না দিয়ে দেওয়া আছে। গিয়ে দেখার পরে পুলিশকে ইনফরমেশন করলাম, পুলিশ গিয়েছিল, পুলিশ নিয়ে এসছে তুলে লাশটাকে। কি কারণে এই আত্মঘাতী হয়েছে কি মনে হচ্ছে? না, এখন আত্মঘাতীটার কারণটা জানা যায়নি। 10 দিন হলো না, গন্ডগোল শোনা যায়নি। নতুন বিয়ে তো, এখন ওদের মধ্যে কি গন্ডগোল আছে এখন তদন্ত করলেই বোঝা যাবে ওটা। তো সন্ধ্যার দিকে ওরা শুতলো, তো দুজনে, আমিও ঘরে শুতলাম, ওরাও শুতলো। এরপরে তো ওদের মধ্যে কি হলো না হলো, সকালে আমার ছোট মেয়েটা দেখছে যে ওরা নাই ঘরে, চুলা করে আসে দেখছে যে ও ফাঁসি লাগানো আছে, ছেলে ভেন নাই, কোনো কিছু তো গন্ডগোল না, আমার সাথে ওর কোনো গন্ডগোল হয়নি। ওদের স্ত্রী পুলিশে কি হয়েছে না হয়েছে তা আমি বলতে পারছি। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।